Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will be completing the meiosis by discussing the meiosis second. Right? We have completed meiosis first, it is different phases, and now in that we have seen that two daughter cells with haploid number of chromosomes are formed. These two cells now does not go through interphase, right, before entering into the meiosis second, the second meiotic division. Instead they undergo a short period that is called as interkinesis, right, just to prepare for this second meiotic division. And this second meiotic division again is it is an equational division and is completed in 4 stages, right, and the first stage is prophase second. Since it is the second meiotic division, we mark it with prophase second. And in prophase second, all those change as we saw in prophase first, right. Here what happens, these centrioles move towards the two poles, the nuclear membrane dissociates, right, and other cell organelles dissociate, right, spindle formation takes place and the ester formation takes place as is seen here, right. The chromosomes condense, again the chromatin fibers, they condense, right, and are seen as thread-like structures. Is it right? So now let's write the points what occur. देखें बेटा, यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसोसिएट होता है, ब्रेकअप होता है, डिसोसिएट्स, ठीक है बेटा. अच्छा, यहाँ पे जो है आप देखते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, राइट, और जो है स्पिंडल फाइबर्स एंड ये एस्टरेज, ठीक है ना, ये जो है दीज अपीयर, स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टरेज अपीयर, ठीक है बेटा. और ये सेंट्रियोल जो है they have moved to two opposite sides, right, in both the cells. Centrioles move towards the opposite poles, ठीक है बेटा, towards the opposite poles. Now after that these cells now enter the second phase, that is the metaphase. Metaphase second. Since we have discussed it earlier, so I'll not go so deep, just to remind you. In metaphase second, you see the chromosomes align themselves at the equatorial plane, right. Spindle fiber जो हैं, they attach themselves to the centromere or the kinetochore of this chromosomes or the chromosomes, right. यहाँ पे आप देखिए, ये आपको पहले ही मैंने बताया है कि ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट अटैच होते हैं विद द क्रोमोसोम्स एट द काइनेटोकोर, ठीक है ना, इनको कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स, ठीक है ना. इनका फंक्शन है दैट दे अपॉन कंट्रैक्शन ये सेपरेट करते हैं इन क्रोमोसोम्स को, राइट. तो यहाँ पे मेटाफेज में हम सिंपली क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स अटैच themselves at the equatorial plane, किसे, with the help of contraction of chromosomal fibers. chromosomal fibers की contraction की मदद से जो है ये इनको इक्वेटोरियल प्लेन पे लाने में हेल्प करते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेज व्हाट द सेल्स अंडरगो is the anaphase, and it is in fact anaphase second. Anaphase second. तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये सेंट्रोमियर जो होते हैं, यहाँ पे जो हमने देखा था सेंट्रोमियर क्रोमोसोम, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ दीज क्रोमोसोमल फाइबर्स वो स्प्लिट होते हैं, राइट। यहाँ पे हम दिखाएंगे ये स्प्लिट होते हैं और इस तरह से जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो अब डबल होता है, ठीक। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर्स। और यहाँ पे एक और किस्म के फाइबर जो हमने पहले ही पढ़े हैं वो वजूद में आता है, दीज आर द फाइबर्स बिटवीन दीज टू क्रोमैटिड्स, इनको कहते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। यहाँ पे हम भी दिखाएंगे these are the interzonal fibers. So what happens in anaphase? Simply the centromere of chromosome splits due to contraction of spindle fibers, और उसमें जो है वो क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स, ठीक है ना। तो और क्या हो जाता है इस स्टेज में, इंटरजोनल फाइबर जो हैं वो अपीयर होते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर। वो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे जो है ये क्रोमोसोमल फाइबर जो है ये कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स द पोल्स, और ये इंटरजोनल ये फाइबर जो ये स्ट्रेच होते हैं, ये पुश करते हैं क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स द पोल्स। इन दिस वे द क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द पोल्स। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज टेलोफेज, फोर्थ स्टेज इट इज टेलोफेज। टेलोफेज जो है ये मैं टेलोफेज सेकंड, इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का रिवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो है ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपियर होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर बन जाता है, वहाँ पे डिसअपियर होता है, यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे वहाँ क्रोमोसोम से क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट होते हैं इनटू क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ डिकंडेंसेशन होती है और क्रोमोसोम नाउ अपीयर एज क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है ना। ये स्पिंडल फाइबर्स जो भी हैं ये सब डिसअपियर होते हैं। दैट इज व्हाट हैपन्स इन दिस टेलोफेज। सो इसमें हम लिखेंगे ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रीअपियर होता है, रीअपियर्स, ठीक है ना। और जो है स्पिंडल फाइबर जो होते हैं या एस्टर रेज होते हैं दे डिसअपियर, वो आप नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट जो है क्रोमोसोम जो हैं वो डिकंडेंस होते हैं, डिकंडेंसेशन होती है, क्रोमोसोम्स डिकंडेंस, ठीक, तो फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो है एक ये आप देखेंगे टेलोफेज में कंस्ट्रिक्शन होती है सेल में, सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन होती है एट द completion of telophase. A constriction appears in the middle of the cell membrane और फाइनली यही साइटोकाइनेसिस सेकंड में डीप होके सेल को डिवाइड करते हैं इनटू 2 और एज ए रिजल्ट 4 सेल्स बनते हैं जो हम दिखाएंगे इसमें किसमें साइटोकाइनेसिस। सो दिस इज नाउ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस सेकंड। और साइटोकाइनेसिस सेकंड में क्या होता है,
ये जो है ये कंस्ट्रिक्शन जो होती है सेल मेम्ब्रेन में वो डीपन्स होती है, गहरी होती जा रही है एंड डिवाइड्स द सेल इनटू 2 daughter cells all having, सबों को जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमने देखा बेटा ये जो मियासिस है इसमें जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होता है वो होता है रिडक्शनल बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, और सेकंड मियाटिक डिवीजन जो होता है वो इक्वेशनल होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, और एज सच यहाँ पे जो है 4 सेल्स डॉटर सेल्स बन जाते हैं विच आर हैप्लॉइड इन नेचर, एंड दैट्स ऑल अबाउट मी।